Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himlata Chandolia, class 8. Today we are going to continue chapter number 15 of science, that is some natural phenomena. We already had discussed what is natural phenomena, what is lightning and types of charges, how they can transfer the charges, their interaction, isn't it? In today's video students, we are going to discuss about the story of lightning and one more natural phenomena, that is earthquake. So students, we already know that what is lightning. You might have seen sparks between the wires when they become loose जब बहुत तेज आंधी चलती है, isn't it? और जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक पॉइंट के अंदर कोई सॉकेट लगाते हैं बट इट इज़ लूज, सो हमने वहाँ पे भी स्पार्क नोटिस किया है. जब हम हमारे घर में बर्नर को जलाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइटर, तब हमने लाइटर के अंदर भी स्पार्क नोटिस किया है. सो स्टूडेंट, लाइक दीज इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, lightning is also a electric spark. Clear everybody? और हमने पहले ये पढ़ा था कि it occurs because of the accumulation of the charges, and we already understand what are charges, what are the types of charges, how we can transfer the charges, isn't it? So students, we can say that lightning can explain in terms of the charges produced by rubbing. Yes, we only had discussed the charges produced by rubbing, that is the friction. क्लियर एवरीबॉडी? अब ये प्रोसेस नेचर में होती कैसे है बच्चा? अच्छा, आप लोगों ने ये तो नोटिस किया है कि लाइटनिंग हमेशा तब होती है जब बारिश होने वाली होती है या बारिश हो चुकी होती है, उसके बाद भी हमने इस प्रोसेस को देखा है. तो ऑब्वियसली क्या है, उस वक्त हवा ऊपर की तरफ चलती है और बारिश का पानी नीचे की तरफ आता है. सो इट इज़ द अपोजिट मोमेंट. क्लियर एवरीबॉडी? वी कैन से दैट during the development of thunderstorm, the air currents move upward while water droplets move downward. Clear everybody? हवा कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है और पानी की बूंदें they are coming downward. So it is the opposite movement. Clear everybody? These vigorous movements cause separation of charges. This is very important point class 8. ये जो vigorous movement होता है, इसकी वजह से charges develop होते हैं और उनका separation होता है. जो upper edge है cloud का, it become positive and the lower edge of the clouds become negative, and on earth the upper surface becomes positive. Clear everybody? Have a look here. The trees, the buildings, the upper layer, it becomes positively charged. Clear everybody? Students, the positive charges collect near the upper edge of the cloud and negative charges accumulate near the lower edges. Is it understood? Okay. There is accumulation of positive charges near the ground also. Have a look here. समझ में आ गया? ऊपर वाली एज पे पॉजिटिवली चार्ज, क्लाउड्स की नीचे वाली एज पे नेगेटिवली चार्ज और अर्थ के ग्राउंड पे पॉजिटिवली चार्ज. ओके. व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ accumulated charges becomes very large, the air, which is a poor conductor of electricity, we already had studied this, okay, is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. Clear? Negative and positive charges meet, producing streaks of bright light and sound. और यही क्या होता है? बिजली कड़कना. ठीक है, जब हमें बिजली कड़कती हुई दिखती भी है और हमें सुनाई भी देती है. We see streaks as lightning. Clear everybody? अब क्या होता है? इनमें vigorous movement होता है. Vigorous movement से क्या होता है कि separation of charges हो जाता है. अब separation of charges से क्या होता है बच्चा? ये यहाँ पर एक process होती है जिसमें क्या होता है? The positive charges and negative charges meet, and this process we already had studied in the previous video. What we call it? It is known as
discharge process. Clear everybody? The process is called an electric discharge. The process of electric discharge can occur between two or more cloud. It may be possible between cloud and the earth, okay? Or between the clouds and the earth. Clear everybody? समझ में आ गया? What is the basic physics behind the lightning? Students, as we already know that lightning is a destructive natural phenomena. It harms life and the properties. So what we have to do? We have to adopt some safety measures to protect ourselves. Clear everybody? अब बच्चा देखो, जब भी बिजली चमकती है, ठीक है, then it is a alarm for us, it is an alert for us that we have to move towards a safe place. और बच्चा, अगर हम घर के अंदर आ गए हैं और बिजली कड़क गई है, there's a thunderstorm, so that time you have to wait for some time and then after some time you have to move towards. क्लियर एवरीबॉडी? ऐसा नहीं कि बस अब तो बिजली कड़क गई है, अब तो हमें बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं, हमेशा कुछ वक्त के लिए हमें वेट करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, हियर आई एम जस्ट डिस्कसिंग सो मेनी सेफ्टी मेजर्स विद यू विच वी हैव टू फॉलो इन आवर लाइफ. Clear everybody? Students, during lightning and thunderstorm, no open place is safe. Yes. समझ में आ गया? जब भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होती है, कोई भी जो ओपन स्पेस है वो हमारे लिए सेफ नहीं है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? एज सून एज पॉसिबल वी हैव टू मूव टूवर्ड्स आवर हाउस, टूवर्ड्स एनी बिल्डिंग विच इज़ नियर अबाउट अस. क्लियर एवरीबॉडी? ओके. Hearing thunder is an alert to rush to a safer place. After hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safe place. Students, let's discuss how we can find out a safe place. As you already know that our house or a building is the safest place. Clear everybody? But student, what happen if we are outside? If we are traveling? Okay, so students, a house or a building is a safe place. If you are traveling in a car or in a bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut. Yes. मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और अचानक से there is thundering, there is lightning. Okay, then what you have to do? You have to shut down your doors and the windows of the car. क्लियर एवरीबॉडी? बस में है, किसी भी फोर व्हीलर में आप हैं, ठीक है, जिसके खिड़की दरवाजे बंद हो सकते हैं. इससे क्या होगा बच्चा? इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लाइटनिंग. क्लियर एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि हम ड्यूरिंग लाइटनिंग व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू. सो लेट्स डिस्कस अबाउट डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. सपोज यू आर आउटसाइड. Okay, then what we have to do? Open vehicles like motorbikes, tractors, construction machineries जैसे हमारी JCB वगैरह हैं. Open cars are not safe. ये हमारे लिए सेफ नहीं है. तो आपको क्या करना चाहिए? वहीं रुक जाना चाहिए और आसपास में कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ पर जाके अंदर चले जाना चाहिए. ओके. Open fields, tall trees, shelters in parks, elevated places do not protect us from lightning strokes. अब क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते हैं? बिकॉज ओपन फील्ड में बिजली कहीं पर भी गिर सकती है, ठीक है. टॉल ट्रीज तो फेवरेट होते हैं. देखो, हमने अभी क्या पढ़ा कि जो क्लाउड्स होते हैं उसकी अपर एजेस पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नीचे वाले पे नेगेटिव होते हैं, और अर्थ जो ग्राउंड है उस पे भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. मान लीजिए बिजली कड़की, ठीक है, देयर इज थंडरस्टॉर्म. जो सबसे लंबा ट्री होगा ना उसके ऊपर सबसे पहले बिजली गिरेगी. सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम टॉल ट्रीज. क्लियर एवरीबॉडी? डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक. ये जगह हमें लाइटनिंग स्ट्रोक से नहीं बचा सकती हैं. क्लियर एवरीबॉडी? और सबसे बड़ी गलती जो हम कर लेते हैं दैट इज़ वी आर यूजिंग द अम्ब्रेला. समझ में आ रहा है? सो अवॉइड द यूज ऑफ अम्ब्रेला. कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट
at all good idea during thunderstorm. क्यों? Because इसका जो फ्रेम है वो किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है, and we know that metals are the good conductors of electricity. Clear everybody? Okay? अब बात की हमने जो टॉल ट्रीज हैं फॉरेस्ट में, वो भी क्या हैं? वो ज़्यादा लाइटनिंग प्रॉन वो है, ठीक है, वो जल्दी से बिजली पकड़ लेते हैं. इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर द shorter trees. I already had explained you why we have to take shelter under the short trees. Clear? वहाँ पर probability कम है lightning strokes की. Okay? If no shelter is available and you are in open field, stay away from all trees. समझ में आ गया? Stay away from the poles or other metal objects. बार बार वही चीज़ है, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल्स और भी कोई मेटेलिक पोल्स हैं बिकॉज दे आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर एवरीबडी? अब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास लास्ट एक सिचुएशन बचती है अपने आप को बचाने के लिए, एंड दिस इज दैट पोजिशन. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. लेट मत जाना ग्राउंड पे, ठीक है. अपने आप को बचाना है तो इस पोजीशन में बैठ जाना. इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड. आपको अपने घुटने मोड़ लेने हैं, अपने हाथों को ऐसे कर लेना है, सिर को नीचे की तरफ कर लेना है. क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म. ओके क्लास, इफ वी आर इनसाइड द हाउस. अब आप कहेंगे मैम कब से तो आप कह रहे हो कि घर तो हमारे लिए बहुत सेफ है बच्चा, लेकिन कुछ यहाँ पर भी हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे. क्या? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स. इसलिए जब भी लाइटनिंग होती है तब अपने घर से जो लैंडलाइंस हैं उनसे कॉल ना करें, ठीक है. ऑलवेज यूज़ कॉर्डलेस फ़ोन्स, मोबाइल्स, ठीक है. अब ये समझदारी भी मत करना कि आपके पास तो मोबाइल है तो आपने मोबाइल यूज़ कर लिया लेकिन अगले बंदे को आपने उसके लैंडलाइन पे कॉल कर दिया है. क्लियर एवरीबॉडी? सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट यूजिंग द लैंडलाइन मोबाइल्स और यू आर नॉट टचिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स और मेटल पाइप्स बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर्स. ओके? It is safer to use mobile phones and cordless phones. Bathing should be avoided during the thunderstorm to avoid contact with running water. समझ में आ गया? Electrical appliances like computer, TVs, etc. should be unplugged. बिल्कुल इनके प्लग निकाल दीजिए जो भी हैं, ठीक है. Students, electrical lights can remain on. They do not cause any harm. समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर की. अब व्हाट इज़ दिस लाइटनिंग कंडक्टर्स? आप लोगों ने आजकल जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर उनकी छतों पे एक बहुत बड़ा सा लंबा सा रॉड देखा होगा क्लास, जस्ट लाइक दिस, ठीक है. ये जो रॉड है ना, इट इज़ नोन एज lightning conductors. It is just parallel to the whole building और इसका जो बेस होता है it is merged in the earth and it is here made of copper plate. अब ये क्या करता है? सपोज करिए कोई बिजली गिरी, ठीक है, ये क्या करेगा? उसको कैच करेगा and we know that is a conductor. That means it will shift the charges under the earth. समझ में आ गया? और अर्थ हमारी इतनी बड़ी है, ये बहुत सारे शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेती है. क्लियर? और अर्थ के अंडर भी हमने क्या लगाया है? कॉपर प्लेट, विच इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Is it clear everybody? Students, lightning conductor is a device used to protect buildings from the effect of lightning. A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. समझ में आ रहा है? जब बिल्डिंग बनती है तब बिल्डिंग से लंबी एक मेटालिक रॉड लगा दी जाती है. समझ में आ गया? ओके क्लास,
one end of the rod is kept out in the air and other end is buried deep in the ground. That I already had explained. The rod provides easy route for the transfer of electric charges to the ground. So, it is clear about the physics behind the lightning. Students, you might have seen some houses, some buildings without these lightning conductors, isn't it? अब आप सोचते होंगे जब वहाँ पर lightning conductors ही नहीं हैं तो how they can protect themselves from the lightning strokes? Student, what happened basically? The metal columns used during the construction like electrical wires and water pipes in the buildings, they also protect us to an extent. Clear everybody? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम safe हैं. What we have to do? We don't touch them during a thunderstorm. Clear? So I hope a lightning story is clear in everybody's mind. अब हम डिस्कस करते हैं एक और natural phenomena which is also destructive in nature and that is earthquake. Earthquake का नाम सुनते ही सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कब आ जाता है. As we already had discussed about cyclones, thunderstorms and lightning. Anyhow, we can get information about them in advance or we can say that we can get the warning information. So, somehow we can protect ourselves from the destruction. हम अपने आप को तो एटलीस्ट बचाने की कोशिश कर ही लेते हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की तो बच्चा ये जो अर्थक्वेक है ना इसकी कोई भी एडवांस या कोई भी प्रियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है. दैट्स वाई इट इज़ सो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. क्लियर? इससे मास डिस्ट्रक्शन होता है. ओके students, natural phenomena like thunderstorm, lightning and cyclones can cause large scale destructions of human life and property, but fortunately these phenomena can be predicted to some extent and this will help us. Okay, the weather department can warn about a thunderstorm developing in some area, so we get time to take measures to protect ourselves from damage caused by these phenomena. Simple सी चीज़ है. Okay, students, one natural phenomena which we are not yet able to predict accurately and it is earthquake, जिसको हम कहते हैं भूकंप. समझ में आता है? हम भूकंप से सिर्फ इतना सा समझते हैं कि धरती हिलती है, शेकिंग ऑफ अर्थ, isn't it? और उस शेकिंग ऑफ अर्थ से क्या होता है? बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन. ओके, इट कैन cause damage to human life property on a huge scale. ठीक है स्टूडेंट्स, भारत में, इंडिया में भूकंप कई बार आया है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लेवल पे आया है. हम डिस्कस करते हैं कुछ मेजर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स को. अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया जिसको सब लोग आज भी याद रखते हैं एंड इट इज़ ऑन 8th of October 2005 in Uri and Tangdhar town of North Kashmir. Have a look on the picture how destructive it was. Clear? Another earthquake that comes on 26 January 2001. Okay, in Bhuj, that is district of गुजरात. ये दो बड़े ऐसे भूकंप की घटनाएं हैं जिन्होंने एक मास डिस्ट्रक्शन किया था. क्लियर? जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जान का भी और माल का भी. सो देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. क्लियर? स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? ठीक है, हमने बोल दिया शेकिंग ऑफ अर्थ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. नो, this is not enough for us.
What is an earthquake basically? अगर हम हमारी पुरानी बातों पे जाएं, जैसे हमने लाइटनिंग की बात की थी कि लाइटनिंग में हमने ये पढ़ा था कि पुराने ज़माने में लोग सोचते थे भगवान जी हमारी फ़ोटो खींच रहे हैं, या कुछ लोग ये समझते थे कि भगवान अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वैसे ही अर्थक्वेक से रिलेटेड बहुत सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक बहुत फेमस सा स्टोरी ये है कि ये जो हमारा अर्थ है ना, ये बुल के हॉर्न्स के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, जब बुल इनको शिफ्ट करता है देन देयर इज अ शेकिंग ऑफ अर्थ एंड दैट इज नोन एज अर्थक्वेक, बट दिस इज नॉट द truth. Clear everybody? So students, basically earthquake, it is caused by a disturbance deep inside the earth's crust. Clear everybody? अब ये earth crust क्या होता है समझाती हूँ. Earthquake occurs all the time all over the earth. Yes, देखो ऐसा नहीं है कि अर्थक्वेक कभी कभी आता है, ये हमेशा होता रहता है, बस उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है. अर्थ हमारी हमेशा हिलती रहती है. क्यों? बिकॉज जो हमारी अर्थ है इट्स क्रस्ट इज मेड ऑफ डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स. क्लियर एवरीबॉडी? धीरे धीरे हम इसके बारे में डिस्कस करते चलते हैं. ओके, मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट. हाँ, जो बहुत ज़्यादा मेजर होते हैं लाइक उरी, लाइक भुज, ये बहुत कम फ्रीक्वेंट होते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो अर्थक्वेक है वो आते रहते हैं, कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता है. क्लियर एवरीबॉडी? दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, bridges, dams and people. That I already told you, there is a mass destruction just because of the earthquakes. There can be a great loss of life and property. Clear everybody? Students, earthquake can cause floods, landslides and tsunamis. हमने ये चीज़ें पहले क्लास 7th में भी डिस्कस करी हैं. क्लियर एवरीबॉडी? अब सुनामी अर्थक्वेक कैसे लेके आता है बच्चा? देखो, हमारा जो अर्थ है उस पर पानी भी है और उस पर लैंड सरफेस भी है. अगर हम अर्थक्वेक की बात करते हैं, इट डजंट मीन्स दैट कि आपका जो लैंड एरिया है सिर्फ उसी पे अर्थक्वेक आता है. हमारी अर्थ टोटली इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट प्लेट्स. क्लियर एवरीबॉडी? और ये जो प्लेट्स हैं, when there is shaking in between the plates, clear everybody, it causes the earthquake. और ये seas के अंडर भी हो सकता है, ये oceans के अंडर भी हो सकता है. clear everybody? नॉर्मली हम सुनामी को क्या कहते हैं? वाटर earthquake. ठीक है, जो पानी के अंदर earthquake आता है. क्लियर? इसलिए ये earthquake ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है बिकॉज इट कैन कॉज फ्लड, landslides and tsunami. Okay? A major tsunami occurred in Indian Ocean. Everybody knows that. That is on 26th of December 2004. Clear? Students, let's understand, let's discuss what causes an earthquake. We know it is a shaking of earth, trembling of earth, we know that. But student, what could cause a disturbance inside the earth? वो हॉर्न वाला स्टोरी इज नॉट द ट्रुथ दैट. ओके, सो स्टूडेंट्स, द ट्रिमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन inside the uppermost layer of earth and we call it the crust. Have a look in the diagram. This is the uppermost layer of earth. We call it crust. Clear everybody? अब हम इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से. हैव अ लुक ऑन द डायग्राम. दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. द आउटरमोस्ट लेयर क्रस्ट, इनसाइड इट mantle, and here it is outer core, and the main zone, the inside one, that is the inner core. Clear everybody? So the outermost layer is crust, just below it is mantle, and just below the mantle we are having outer core and a very central point, and that is the inner core. So I hope the structure is clear.
समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट इन अ वन पीस. अभी हमने बात करी थी कि जो हमारा अर्थ का जो अपर लेयर है, इट इज fragmented. Okay, it is made up of different fragments and we call those fragments plates. बताया था मैंने कि हमारा जो अर्थ है, it is made up of different tectonic plates. Okay, it is fragmented. Each fragment is called a plate. Have a look like this. We are having Eurasian plate, we are having Arabian plate, we are having Indian plate. There are different plates which form the upper layer, that is the earth crust. Clear? Students, these plates are in continual motion. Yes. ठीक है, हमेशा हिलती रहती हैं, मोशन होता रहता है, लेकिन जब ये मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम उस अर्थक्वेक को फील करते हैं, हम उसे महसूस करते हैं. लेकिन अभी जैसे मान लीजिए आई एम स्टैंडिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज़ नो मोशन बिटवीन द प्लेट्स. देयर इज़ ऑल्सो द मोशन बिटवीन द प्लेट्स, बट इट इज़ नॉट इन सच अ मैग्नीट्यूड. Clear everybody? Students, when they brush past one another or a plate undergoes another due to the collision, समझ में आ गया? एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे, ठीक है? They cause disturbance in the earth's crust. Okay, have a look here. Suppose we are having different plates and they are just moving. Okay, there is a motion between them, but जब ये एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर लेती हैं, then we feel that shaking. Clear everybody? So this is the movement of Earth's place, and because of that we are feeling the earthquake. It is this disturbance that shows up as an earthquake on the surface of the earth. Clear? Students, it is not yet possible for us, for the scientists, to predict when and where the next earthquake might occur. Clear? अभी भी हम कितने ही एडवांस हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि अगला जो अर्थक्वेक होगा वो कहाँ आएगा और कब आएगा. Okay? Tremors on earth can also be caused when a volcano erupts or a meteor hit on earth or an underground nuclear explosion is carried out. समझ में आ गया? These are other few reasons which cause tremors. Clear everybody? Student, लेकिन जो most of the earthquake होते हैं, they just occur because of the movement of the earth's plate. Clear everybody? Since earthquakes are caused by the movement of the plates, the boundaries of plate are weak zones where earthquakes are more likely to occur. Yes. Students, have a look on the diagram here. देखो, suppose करो ये plates हैं, है ना? इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं ये वीक होती हैं, और जब भी ये आपस में कोलाइड करती हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है अर्थक्वेक की. क्लियर एवरीबॉडी? सो स्टूडेंट्स, ये होते हैं वीक जोन्स. क्लियर एवरीबॉडी? और इन वीक जोन्स में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है अर्थक्वेक आने की. क्लियर? सो द वीक जोन्स आर नोन एज seismic और fault zones. अगेन, जहाँ पर प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती हैं, दे आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, एंड दीज वीक जोन्स आर नोन एज seismic और fault zones. Clear everybody? और in India, the areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of Northeast run of Kutch, जिसको हम कच्छ का रन भी कहते हैं, Rajasthan, and the Indo-Gangetic Plain. Have a look here. This is the simple map which is showing the weak zones. और weak zones को हम क्या कहते हैं? Seismic और fault zones. ये बेसिकली कहा जाए तो अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है. क्लियर? ओके.
Students, the power of an earthquake is expressed in terms of magnitude. ठीक है, हम कई बार महसूस करते हैं कि भूकंप के हल्के झटके आए हैं, ठीक है, नुकसान नहीं हुआ लेकिन धरती हिली थी. कई बार भूकंप बहुत ज़्यादा आता है कि बिल्डिंग की बिल्डिंग्स गिर जाती हैं. क्लियर, रोड जो होती हैं वो फट जाती हैं. वी फाइंड आउट द क्रैक्स. क्लियर एवरीबॉडी. सो व्हाट इज दैट बेसिकली, ये जो अर्थक्वेक का पावर है, ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड it is expressed in magnitude on a scale, and what is that scale? It is Richter scale. Important question है class 8, MCQs के लिए भी और one word के लिए भी. Clear? The power of earthquake is expressed in magnitude on a scale, and that scale is known as the Richter scale. Clear? Really destructive earthquake have magnitude higher than 7 on Richter scale. समझ में आ गया? 7 से ज़्यादा अगर किसी का मैग्नीट्यूड है, किसी अर्थक्वेक का है, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है. क्लियर? बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक्स हैज़ मैग्नीट्यूड्स ग्रेटर दैन 7.5. समझ में आ गया? इट इज़ अ सिंपल स्केल. अगर 7 के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड है तो इट विल बी हाई इन डिस्ट्रक्शन. क्लियर? उससे कम है तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा. समझ में आ रहा है? द ट्रिमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कभी भूकंप आता है ना पानी में, आपने कभी पानी देखा है? पानी में आप हल्का सा ना कुछ एक पत्थर फेंकते हैं तो आपको बहुत सारी वेव्स नज़र आती हैं. ठीक है, तो सेम हैपन ऑन द अर्थ ऑल्सो बच्चा. सो द ट्रिमर्स प्रोड्यूसेस वेव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड दीज आर नोन एज, these are called seismic waves. और बच्चा ये जो seismic waves है ना, we can record them with the help of an instrument that is known as seismograph. Clear? The waves are recorded by an instrument called the seismograph. समझ में आ गया? रिक्टर स्केल पे हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं. जब भी अर्थक्वेक आता है, it produces waves on the Earth's surface, and these waves can be recorded by an instrument that is known as seismograph. Clear? The instrument is simply a vibrating rod. Here we are discussing the instrument. कौन सा instrument? Seismograph. कैसा होता है? ठीक है? This is simply a vibrating rod or a pendulum which start vibrating when tremors occur. ठीक है, हमने जैसे ही फील किया ट्रेमर्स आ रहे हैं, ये जो वाइब्रेटिंग रॉड है, ये जो पेंडुलम है, ये अपने आप काम करना स्टार्ट करता है. कैसे करता है? वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग. अ पैन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम. द पैन रिकॉर्ड्स द seismic waves on a paper which moves under it. Have a look here. This is the seismograph. ठीक है, सिंपल सा क्या है, देखो बच्चा, ये आपका स्ट्रिंग है, पेंडुलम बॉब है, और यहाँ यू आर हैविंग द पेन. क्लियर? ये आपका चार्ट पेपर है. जैसे ही ट्रिमर्स आते हैं, पेंडुलम शेक होगा एंड इट इज़ हैविंग द पेन. तो आपकी जो सेस्मिक वेव्स हैं, दे आर रिकॉर्डेड हियर. ठीक है, ये पेन ऐसे चलता जाएगा एंड द वेव्स आर जस्ट मेजर्ड हियर. Clear everybody? Have a look here. This is a typical seismograph record. समझ में आ रहा है? सिंपल सा स्ट्रक्चर है. हमारे पास ये रोटेटिंग ड्रम है, इसके ऊपर हमारा चार्ट पेपर है. जैसे जैसे हमारे सेस्मिक वेव्स होती रहती हैं, ट्रिमर्स हम फील करते रहते हैं, ये फील करता है इंस्ट्रूमेंट, वैसे वैसे ही ड्रम रोटेट होता जाता है. इसके ऊपर आपका मार्केशन, वो ड्राइंग चलती रहती है, जैसा ग्राफ चलता है, लाइक दिस. ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज द सिंपल seismograph. Clear everybody? By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake. देखो, ये है सिंपल सा एक अपना मैप. ठीक है, मैप का मतलब वो नहीं कि वो वाला ही मैप अपना पॉलिटिकल और वो. इट्स अ सिंपल. देखो, वेव्स जनरेट हुई, सेस्मिक वेव्स. सिंपल, दिस इज द फोकस पॉइंट, एपिसेंटर.
ये आपकी सेस्मिक वेव्स हैं, जस्ट ऑब्जर्व, जैसे हमारे पानी के अंदर आती हैं, ठीक है, एंड दिस इज आवर अर्थ सरफेस. Clear everybody? With the help of these seismic waves, we construct a map by using the seismograph. Students, अब हम समझते हैं how we can protect ourselves from earthquake. Nobody can predict the earthquake, that is clear to everyone. But if we are having information that nearby our district, nearby our state, some state has faced the earthquake, so we have to quickly opt some safety measures. What are they? Which we are going to discuss here. So, protection against earthquakes. We know that earthquakes cannot be predicted. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. Clear? People living in seismic zones. अब seismic zones कौन से zones होते हैं? वो zones जो earthquake prone है, जहाँ earthquake frequently आते रहते हैं. Where the earthquakes are more likely to occur, have to specially prepare. बिल्कुल उनको तो prepare ही रहना चाहिए, ठीक है. First of all, the building in these zones यानी seismic zone should be designed that they can withstand major tremors. ठीक है. It is advisable to make structure simple so that it is quake safe. Yes. बिल्डिंग सिंपल सी ऐसी बनाई हुई हो जो भूकंप के झटकों को सहन कर सकें. सिंपल सी बात ये है. कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स. बिल्कुल जो सेस्मिक जोन्स में जो घर हैं जहाँ पर दुनिया रहती है उनको अपने घर बिल्कुल सेस्मिक जोन्स के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए जिससे हमें कम से कम नुकसान हो. ओके. इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड or timber is better than using heavy construction material, just like in Japan. वहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं वो कंस्ट्रक्शन सीमेंट वेमेंट. दे आर जस्ट मेकिंग देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ मड एंड टिम्बर. क्लियर? कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल. यस. क्यों? क्योंकि अगर अर्थक्वेक आएगा, ज़्यादा भारी छत होगी तो वो आपके ऊपर ही गिरेगी. आपके ऊपर नहीं गिरेगी तो बाहर जो लोग हैं उनके ऊपर गिरेगी. तो अल्टीमेटली नुकसान हमारा है. हमारा मीन्स ह्यूमन लाइफ का है. ओके. इट इज़ बेटर इफ द कपबोर्ड्स एंड शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू वॉल सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजीली. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिंपल हमने सिर्फ कबर्ड्स खड़े कर रखे हैं. वी हैव टू फिट दैम इन द वॉल. ओके. बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक, photo frames, water heaters, etc. so that in the event of the earthquake they do not fall on people. Since some buildings may catch fire. Yes. देखो बेटा, ये पॉसिबिलिटी है कि जब अर्थक्वेक आता है तो आग लग सकती है. इसलिए हमारी बिल्डिंग्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर और बहुत सारे दरवाजे होने चाहिए. समझ में आ गया? Due to an earthquake, it is necessary that all buildings, especially the tall buildings, have firefighting equipments in working order. Clear everybody? An earthquake does strike. अब earthquake आ गया है. Take the following step to protect yourself. पहला condition that if you are at home, क्या करोगे? सबसे पहले तो अपने आप को किसी टेबल के नीचे घुसा लो. टेबल के नीचे बैठ जाना है. लेटना कहीं नहीं है. जिससे क्या होगा कि ऊपर से कुछ भी गिरेगा तो पहले उस टेबल पे या उस अंडर कवर पे गिरेगा जिसके नीचे आप बैठे हैं. क्लियर? समझ में आ गया? टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप. स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स. यस. घर के बगल में मतलब दीवार के पास कोई अलमारी है, कोई कबर्ड है, ठीक है, उनसे दूर रहें आप. ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू. इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप. प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो. सिर को बचा लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है. ओके. इफ़ यू आर आउटडोर्स, हम मान लीजिए बाहर हैं, तब क्या करें? फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड overhead power lines. बिल्कुल.
एक बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह ढूंढ लीजिए। साफ़ सुथरी से मतलब है खाली जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पर ना तो बड़ी बिल्डिंग्स हों, ना लंबे लंबे पेड़ हों, ना ही कोई आपके ओवरहेड पावर लाइन्स हों। ठीक है। ड्रॉप to the ground. If you are in car or a bus, do not come out. Ask the driver to drive slowly to a clear spot. Do not come out till the tremors stop. समझ में आ गया है? सिंपल सी बात है, अगर हम बाहर हैं, कार में हैं, बस में हैं, तो उसी के अंदर रहिए, बाहर मत आइए। लेकिन आप बाहर हैं, खुले में हैं, तो अपने आप को दूर ले जाइए लंबे लंबे पेड़ों से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, जो आपकी इलेक्ट्रिक की पावर लाइन्स हैं उनसे। सिंपल सी चीज़ है। और ढूंढने की कोशिश करिए कोई ऐसा शेड दैट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट अर्थक्वेक। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? So with these topics, the story of lightning, earthquake and safety measures, this chapter completes here. In the coming video, we will discuss the exercise part of this chapter. Till then, revise what we learned from the previous video in today's video. Take care of yourself and thank you.